स्टार्ट करना है, ठीक है? थोड़ी देर स्टार्ट करना है, ठीक है? मैंने पेपर सेंड किया ग्रुप में, ठीक है?
मेरी स्क्रीन विजुअल है ना? एक बार कोई कंफर्म करो, स्क्रीन तो विजुअल है ना? बोलो भाई। यस सर। ओके। मैं जो पेपर सेंड किया है उस पे पेज नंबर 62 पर आओ, 61 पर। पेज नंबर 61 पर आना, उसमें एक प्रॉब्लम, इससे पहले मैंने सारी प्रॉब्लम डिस्कस कर दी है। किसकी किसकी प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया अभी? प्रोबेबिलिटी एंड इन्फ्रेंस की। ओके। अभी हम प्रोबेबिलिटी एंड इन्फ्रेंस की डिस्कस कर रहे हैं। देन मैंने फर्स्ट क्लास में अपने टॉपिक डिसाइड किए थे कि इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अभी हम प्रोबेबिलिटी एंड इन्फ्रेंस की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। तो 56 नंबर प्रॉब्लम है जो 56 में क्या कर रहा है? लेट x1 x2 सॉरी x1 y1 x2 y2 xn yn n greater equal to 4 be a random sample from the bivalent normal। अब बोला bivalent normal। ओके। तो bivalent normal जिसने बोला एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इक्वल टू y1 एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ y2 इक्वल टू म्यू टू। ओके। वो कह रहा एक्स आई वाई आई दिस इज फॉलोज bivalent normal मतलब n ऑफ टू म्यू वन म्यू टू। ओके। एंड वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या है इसकी? होल थिंग सिग्मा स्क्वायर एंड दिस इज रो सिग्मा स्क्वायर रो सिग्मा। ओके। इसका पीडीएफ क्या होगा? एमएलई फाइंड करना है ना? हो जाए तो फॉलोइंग आर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ रो का हमें एमएलई फाइंड करना। ओके। तो बाईवेरिएट का पीडीएफ क्या होता है? कोई बताओ बाईवेरिएट का पीडीएफ क्या होता है? बोलो बाईवेरिएट का पीडीएफ क्या होता है? हेलो। बोलो बोलो। हाँ, इसका फॉर्मूला होता है 1/σ1 σ2 मल्टीप्लाई σ2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 पाई मल्टीप्लाई e टू द पावर ऑफ x1 माइनस μ1 बाई σ1 स्क्वायर माइनस 2 रो x1 माइनस μ1 बाई σ1 मल्टीप्लाई x1 माइनस μ2 बाई σ2 प्लस x1 माइनस μ2 बाई σ2 होल स्क्वायर। लास्ट में भी एक्शन होगा, स्टार्टिंग में भी एक्शन होगा? Sorry, x2 means another random variable। ओके। इसका जो पीडीएफ होता है एफ ऑफ एक्स कामा वाई लिखोगे तुम, तो ये होगा 1/2 sigma 1 sigma 2 तो means sigma square because sigma is same। okay, sigma 1 and sigma 2 are same, so here sigma square under root 1 minus rho square। okay, then e की power minus half q2। okay, this q is equal to this q is a function of x comma y। okay, this q is equal to 1/1 minus rho square bracket x minus mu1 upon sigma whole square minus 2 x minus mu1 sigma 1। okay, so here sigma 1 equal to sigma y minus mu2 divided by sigma। okay, plus y minus mu2 divided by sigma whole square। दिस इज पीडीएफ। ओके। अब एमएलई फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? बताओ कोई। अगर तो रो का पहले तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा?
लाइक्लीहुड फंक्शन। likelihood, okay, then उसके बाद तो यहाँ पे जो पैरामीटर है अननोन है, उसके रेस्पेक्ट में तो हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। okay, how we calculate likelihood function? Okay, likelihood actually, if the random variables are independent, then likelihood is product of all of these external. If random variable is not independent, then how can we calculate likelihood function? Random variable is not independent. In that case, mhm, How you know that this random variable is independent? Because he are not given this random variable independent. okay, so it is not given. Okay, I have checked the question. What? I have not checked the question actually. Sorry, I thought it was independent. Here is not given the random variable independent. Here one thing is given, it is random sample. Random sample is always IID and independent. IID means Oh yeah, identical yeah. and independent. Okay. Yeah. Okay, yeah. Yes, yes, yes. Yeah, yeah. Got it, got it. When this is not independent, this question is go to Bayesian inference. Okay. 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 Then in the Bayesian inference likelihood function, finding the likelihood function techniques is separate thing. Okay. This thing is discussed in Okay, Bayesian okay. inference. Okay. But here Uh, one thing is just given. just one doubt, Professor. Okay. Uh, so, if the random variables are not independent, then we can go for Bayesian, right? Okay. Because in Bayesian inference, we are talking about posterior and prior. Okay. There are Right. sub given. Yes. There are sub given. Means there is a conditional distribution. We are talking about only conditional distributions. Okay. In Bayesian Okay, okay, inference, we are okay. also talking about parameters and conditional distributions. Okay. Then Yeah, yeah. we are not talking about independency. Okay, great, great. Huh. Got it, got it. So likelihood function L of rho, this is function of rho because we are find to estimator of rho, so you can write only rho, otherwise you write rho mu 1 mu 2 sigma square. Okay, so this is rho given x y. Okay, x cal y cal, this is equal to product of I equal to 1 to n f of x I y I. Okay, and x I y I equal to 1 upon 2 pi sigma square under root 1 minus rho square. Okay, this is constant, so this is multiply n times. Okay, so this is power n, and e ke power minus 1 upon 2, here summation I equal to 1 to n, and q of xi comma yi. Okay, okay, and your qi xi equal to qi xi comma yi equal to what? 1 upon 1 minus rho square in bracket xi minus mu 1 whole square divided by sigma square minus 2 xi minus mu 1 divide sigma yi minus mu 2 divide sigma plus yi minus mu 2 whole square divided by I sigma. think we need the row part in middle. Row. Okay, 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 okay. Here is also row. Okay, yeah. Here is also row. Okay, two row. Okay. So after writing likelihood, you take because we differentiate this function. So if we differentiate this function with respect to row, if we take their log function, the log derivative is simple. Okay, so we take log. Okay, so we take log of likelihood. Okay, log of L equal to n minus log 2 pi sigma square and under root 1 minus rho square. Okay, then minus half. Okay, summation I equal to 1 to n. Okay, here one thing also 1 minus rho square. Okay,
half and 1 minus rho square xi minus mu1 by sigma whole square minus 2 rho xi minus mu1 by sigma and yi minus mu2 by sigma plus yi minus mu2 by sigma whole square. Okay. Okay. So now we differentiate this function with respect to rho. Okay. You give this is star. Okay. Differentiate star with respect to rho. Okay. So first term is independent of rho. You can take log a into b. You can log a plus b and then log 2 pi sigma square minus n. This is a constant, so you take differentiation 0. Okay. Here you apply a formula of log a into b. This is 2 pi sigma square is a and 1 minus rho square is b. Okay. So when you differentiate, this is nothing but this is equal to 1 upon n, and log 1 minus rho square is equal to 1 upon 1 minus rho square, and 1 minus rho square is equal to minus 2 rho. Okay. Again you differentiate. How can you differentiate this function? Okay, write down here, give some notation. Okay, because if you write notation, okay, okay, differentiate first, differentiate. Okay, because here we can use the MLE of mu1 and mu2 and sigma square is also okay, because here mu2 sigma square and mu1 also unknown. Okay, here not given known. Okay. So how can you differentiate this function? 1 upon 2 1 minus rho square summation I equal to 1 minus 1 to n xi minus mu by sigma whole square. This is a separate function. This is plus 2 to 2 rho divided by 1 minus rho square and xi minus mu divided by sigma whole square, sorry, mu1 and yi minus mu1 divided by sigma square, sorry, not square, minus 1 upon 2 and 1 minus rho square, and here also summation. Okay, here also summation I equal to 1 to n, here also summation I equal to 1 to n and yi minus mu by sigma mu 2 by sigma whole square. Okay, now you differentiate because this is the function of 1 minus rho square and this is the constant term, this is function of rho, this is function of rho, so you can differentiate easily. Okay. यहाँ तक किसी को दिक्कत हुई? यहाँ डिफरेंशिएशन तो कर ही लोगे अब रो का। जिसको दिक्कत हो तो बता दो। अब देखो एक वन थिंग पहले ये समझो, जब हम नॉर्मल का डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ म्यू1 करो पहले, ठीक। जब हम नॉर्मल का एमएलई फाइंड करते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन में, तो अब मुझे ये बताओ नॉर्मल पॉपुलेशन है, तो नॉर्मल पॉपुलेशन में म्यू का एमएलई क्या होता है? बताओ। x bar एक्स बार। mean ओके, बट हियर गिवन म्यू1 एंड म्यू2, तो म्यू1 और म्यू2 का जो एमएलई होगा दोनों का, वो होगा एक्स बार एंड वाई बार। ओके। हाँ सिग्मा का इस एमएलई क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर का 1 over 1 by m summation of xi minus x bar whole square. xi minus x bar होल स्क्वायर। ओके, बट हियर दो रैंडम सैंपल है, तो यहाँ पर 1 अपॉन n समेशन xi माइनस x बार yi माइनस y बार। ओके,
और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एस ऑफ एक्स वाई से। इसने लिखा है ये चीज़, ठीक है, आई इक्वल टू 1 to n। ओके, ये होता है एम एल सिग्मा स्क्वायर का। ओके, तो इस फंक्शन को रो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जब तुम वैल्यू पुट कर दोगे सिग्मा और म्यू की और सारे अननोन की एम की, तो रो का एम आ जाएगा फाइनली, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करना। प्रोफेसर, हाँ, बोलो। आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ, प्रीवियस स्लाइड में थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड या प्रीवियस प्रीवियस? प्रीवियस प्रीवियस हाँ, नहीं नहीं, जहाँ पे आप कोवेरिएंट सिग्मा स्क्वायर का हाँ, जो एक एक्सप्रेशन। हाँ। Okay. So you are saying actually this expression is look like covariance of xy, right? यस। But how can we say that means it is sigma square? Hello? हाँ, हाँ, सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। हाँ मैं सर मैं जो बोल रहा हूँ हाँ, ये जो है ये तो कोवेरिएंस ऑफ xy है। हाँ। इसको सर आपने बोले इसको सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं यहाँ पे। वन रैंडम सैंपल में कोवेरिएंस किसके इक्वल हो जाएगा? ओके, हाँ करेक्ट, समझ गया। समझ में आया? जब हम कोवेरिएंट, एक्स और वाई को, हाँ जब मैं हाँ एक्स हाँ, और वाई को इक्वल कर दूंगा तो एक्स कोवेरिएंस ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू व्हाट? सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस हो जाएगा, करेक्ट करेक्ट। ओके, गॉट इट। थैंक यू। तो अब ये तुम लोगों को फाइनली फाइंड करना है रो, इसमें रो का डिफरेंशिएशन करना। क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ। रो का डिफरेंशिएशन करना। जब रो का डिफरेंशिएशन कर दोगे सारे एमएलई की वैल्यू पुट करना, फाइनल आंसर आ जाएगा। ये बहुत वेल नोन प्रॉब्लम है। तुम गूगल करोगे तो प्रॉब्लम तुम्हें मिल जाएगी। बस ये बुक्स में भी सॉल्व प्रॉब्लम मिलेगी, ठीक है। ये एक्चुअली में ये जो बे होता है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एक्चुअली में रिग्रेशन एनालिसिस का। बिकॉज व्हेन वी आर यूज रिग्रेशन एनालिसिस में दो मेथड यूज होते हैं। फर्स्ट मेथड इज लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड सेकंड मेथड इज अननोन पैरामीटर। जब हम बीटा का अननोन पैरामीटर का फाइंड करते हैं एस्टिमेटर, तो या फिर उसका एस्टिमेटर फाइंड करते हैं, तो हम एमएलई मेथड भी वहाँ फाइंड करते हैं। एमएलई मेथड से भी हम एस्टिमेटर फाइंड कर सकते हैं, है ना। ओके, तो ये जब मैं तुम्हें रिग्रेशन पढ़ाऊंगा ना, तो मैं वहाँ पर एन मतलब मल्टी डायमेंशन मतलब मल्टीवेरिएट नॉर्मल का बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तुम इसको डिफरेंशिएट करना, इस पे वैल्यू पुट कर देना, फाइनली हो जाएगा। अभी ये एक पेज एक 1.5 पेज से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मतलब डिफरेंशिएशन है सिर्फ, इजी है, कर लेना है, सिर्फ कैलकुलेशन है। यहाँ डिफरेंशिएशन करना, फंक्शन की वैल्यू पुट कर देना जितने अननोन है, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। 57 क्वेश्चन क्या करा? रैंडम सैंपल जस्ट इसके नीचे है, ठीक है। करा रैंडम सैंपल ऑफ साइट 10 इज सेलेक्टेड एट रैंडम from a lot containing 20 items of manufactured product. Okay. Suppose a total number of defective D is in lot of unknown, then the X is a number of defective in a sample B wish to test D equal to 7, H not D equal to 7। पहले ये बताओ इसमें कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा? कह रहा है वो कि रैंडम सैंपल ऑफ साइज 10 साइज के रैंडम सैंपल हम सिलेक्ट करते हैं। एक लाट है, लाट है मतलब एक बैग है, सोच लो। मतलब एक लाट का मतलब एक तरह से बहुत सारे हमारे पास आइटम्स हैं, ठीक है। तो 20 आइटम्स, उसमें मैंने 10 का रैंडम सैंपल सिलेक्ट किया। सपोज दैट द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव डी। अब उसने टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव की बात किया। जब टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव की बात करते हैं तो वहाँ कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है? फिर बोला उसने
लेट एक्स बी अ नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन सैंपल, एक्स है नंबर ऑफ डिफेक्टिव, नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन द सैंपल। फिर उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि जो हमारी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है वो है एच नॉट डी इक्वल टू 7 बी एस या अगेंस्ट एच वन डी ग्रेटर 7। फिर उसने बोला है कि जो क्रिटिकल रीजन है मतलब रिजेक्ट एक्स एच नाइट है, एच नॉट है मतलब क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन, ये गिवन है तुम्हारा एक्स ग्रेटर और इक्वल टू के। ओके, तो बताओ भाई कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे हम। बोलो, नंबर ऑफ डिफेक्टिव में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन किया गया है ना। अच्छा, बाइनोमियल किस केस में डिफाइन किया गया है, कोई बताओ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल का क्या मतलब होता है, हम कौन सा रैंडम वेरिएबल लेते हैं, कुछ तो रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना बाइनोमियल में। देखो जो बाइनोमियल होता है वो होता है नंबर ऑफ डिफेक्टिव या नंबर ऑफ सक्सेज, मतलब एक्चुअली में नंबर ऑफ सक्सेज होता है ना, नॉन सक्सेज जैसा। तो वही बाइनो यहाँ हम बाइनोमियल यूज करेंगे, ठीक है। तो तुम x का पीडीएफ लिखो, d का पीडीएफ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x जो होगा वो होगा 20 में हमने कितने सेलेक्ट किए x, ओके। तो 20 सी एक्स या d कह दो इसी को 20 सी एक्स, एंड प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ। बोलो भाई, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 10/20 होगी, 1/2 होगी नहीं। तो 1/2 के पावर 10 20 यही होगा ना। 1/2 कैसे आया, 10 सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं हम 20 से, तो इसकी डिफेक्टिव की क्या होगी, ये 1/2 ही तो होगी प्रोबेबिलिटी पी। अब उसने बोला है कि तुमको बताना है कि दिस टेस्ट इज, मतलब उसने एक टेस्ट दिया है वेयर के इज डिटरमाइन सब दैट, यहाँ के ऐसे डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। एक्स ग्रेटर और इक्वल टू के 0.05। तो बताओ भाई ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब साइज क्या होगा इसका, ये बताओ। ये साइज क्या होगा इसका, क्या होगा ये बोलो। जो होगा समेशन के इक्वल टू 20 के एक्स इक्वल टू
हाँ, किसी को डाउट है क्या, बोलो। किसी को कोई डाउट है क्या? ये क्या होगा, समेशन एक्स इक्वल टू के टू 20 एंड देन प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स। अब जब हम अंडर एच नाट की बात कर रहे हैं, तो अंडर एच नाट में डी क्या है? अंडर एच नाट जो डी है वो क्या है? डी इक्वल टू 7। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू समेशन के इक्वल टू के टू 20, ओके, एंड देन 20 C 7 एंड 1/2 के पावर 20, ओके। सॉरी, यहाँ डी इक्वल टू 7 है, ओके। One second. A sample of site 10 is selected at random from a lot containing 20 items. If the suppose the number of defective D. Oh, sorry. Here we write, okay. Sorry. Here the number of defective D दिया है नंबर ऑफ डिफेक्टिव का, ओके। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये प्रोबेबिलिटी होगी D/20, ओके। दिस इज D/20, D/20 टू पावर x एंड दिस इज 1 माइनस D/20 टू पावर, दिस इज 20 माइनस x, ओके। हियर इज वन थिंग मिस्टेक बिकॉज 10 साइज के तो रैंडम सैंपल ले रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वो। तो यहाँ पर हम जो यूज करेंगे ना, यहाँ पर अब डी का यूज होगा, ठीक है। यहाँ पर 7/20 होगा टू पावर एक्स एंड यहाँ पर क्या होगा 13/20 टू पावर 20 माइनस एक्स, ओके। अब मुझे बताओ, अगर प्रोबेबिलिटी में एक्स ग्रेटर इक्वल टू k-1 निकालूं, k-1, तो ये क्या आएगा, यहाँ पर समेशन सिर्फ स्टार्ट हो जाएगा कहाँ से, x इक्वल टू k से 20। बाकी सेम चीज तो वही रहेगा, यहाँ 7/20, यहाँ 13/20, ओके। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू k, गिवन प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू k-1 करूँ, देन भी व्हाट, मैं क्या फाइंड करूंगा बताओ। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू k, गिवन प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू k-1, इससे क्या पता चलेगा, बोलो भाई। ये आएगा NC-K, ओके, और ये आएगा NC-K-1, ओके। एंड यहाँ अदर चीज कॉमन होगी तो कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगा D/20 टू पावर k एंड दिस इज 1 माइनस D/20 टू पावर n-k, ओके। और यहाँ पर एक थिंग और आएगा, यहाँ पर D/20 टू पावर k आएगा एंड देन यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस D/20 टू पावर n-k+1, ओके, n-k+1, ओके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर NC-K डिवाइड बाई NC-K-1 इंटू 1 अपान, दिस इज नथिंग बट 1 माइनस D/20 टू पावर 1, ओके। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस D/20, ये 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब तुम कैंसिल आउट करोगे तो क्या होता है, ये फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल k इंटू फैक्टोरियल n-k एंड दिस इज कैंसिल आउट फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल k-1 एंड फैक्टोरियल n-k
k minus 1. Okay. So factorial and factorial cancel, and after calculating this is 20 upon 20 minus d into this is factorial k minus 1 factorial n minus k minus 1 divided by factorial k and factorial n minus k. Okay. When you solve this, you will get what? You will get here k into n minus k. Okay. 20 upon 20 minus d. Okay, this is one. Okay. फाइनली यही आएगा कि नहीं? बोलो. और यहाँ पर n और k, जो n है ये n always is greater or equal to k, and this is always positive integer. Okay, n and k are positive integer. So this quantity is always positive. It's always positive. Okay. So probability of x equal to k, this is greater or equal to probability of x equal to k minus 1. फाइन. यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हुई? देखो, जब हम डिस्क्रीट के केस में यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट करते हैं तो उनका हम क्राइटेरिया निकालते हैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू k का और प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू k माइनस 1 का. तब उसने ऑप्शन क्या बोला? द टेस्ट इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ दिस साइज, इट्स साइज, द पावर फंक्शन ऑफ टेस्ट इज इंक्रीजिंग इन d, द पावर फंक्शन ऑफ टेस्ट इज इंक्रीजिंग इन द टेस्ट इज अनबायस्ड. तो x ग्रेटर और इक्वल टू k 7 तुम्हारा कैसा है? x ग्रेटर और इक्वल टू k. बोलो. अच्छा, एक चीज सिंपल सा सोचो. अब मैं छोड़ो, ठीक है. मैंने तुमको एक दिन एक थ्योरम बताया था कि अगर तुम्हारा एच नॉट ऐसा है, मान लो एच नॉट थीटा इक्वल टू थीटा नॉट है, एंड अगेंस्ट अगर मैं ये टेस्टिंग कर रहा हूँ थीटा ग्रेटर आर थीटा नॉट, इसको शो करने का मीन जानते हो क्या था? मैंने ये शो करने का मेरा मीन्स था कि दिस लाइक्लीहुड फंक्शन इज दिस लाइक्लीहुड. अगर लाइक्लीहुड रेशियो भी तुमने लोगे तो एम एल आर मिलेगा. एम एल आर किस में मिलेगा? एक्स पे मिलेगा. तो इसमें जो एम एल आर फैमिली होता है, जो एम एल आर फैमिली होता है ना, उसके बेसिस में मान लो टी ऑफ एक्स में एम एल आर मिला, तो इसकी ये क्या है? इसकी जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसके बेसिस में हम लोग क्रिटिकल रीजन फाइंड करते हैं और वो यूनिफॉर्मली होता है. ये तो पता है. तो ये बताओ इसमें क्या है? ये एक्स के बेसिस में एमएलआर है या नहीं? बताओ. ये एक्स के बेसिस में एमएलआर है. यही अभी मैंने फाइंड किया ना कि प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू के इज ग्रेटर प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू के माइनस 1. तो एमएलआर एक्स में हुआ, तो एक्स ग्रेटर क्या हुआ? एक्स ग्रेटर के. दिस इज योर क्रिटिकल रीजन बाय दिस थ्योरम. ये थ्योरम होती है ना. तो एमएलआर जिसमें है, एक्स में एमएलआर है, तो यही यूनिफॉर्मली टेस्ट होगा. और यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट हमेशा अनबायस्ड होता है ना. दिस इज अनबायस्ड. अगर ये अनबायस्ड है तो इसका जो पावर फंक्शन होगा, क्योंकि एम एल आर है ना मोनोटाइन, ये इंक्रीजिंग है, तो इसका पावर फंक्शन भी इंक्रीजिंग होगा ना. तो इसको तुम थ्योरम का यूज करके इसके 3 ऑप्शन प्रूव कर सकते हो. तुमको इसमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी. इसका जो पावर फंक्शन होगा, तो इसका पावर फंक्शन भी डी में, जो डी है तुम्हारा ना, पावर फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन डी.
इज इंक्रीजिंग इन डी। ओके, तो इसका फर्स्ट ट्रू हो गया, सेकेंड ट्रू हो गया एंड फोर्थ ट्रू हो गया। अब बताओ इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। इसमें एक थ्योरम लगी है सिर्फ, मैंने बताया था कि टेस्टिंग में तुम सिर्फ ये देखो कि हमारा एमएलआर किस में मिल रहा है। एमएलआर मतलब क्या होता है, एमएलआर बताया था, लाइक्लीहुड को लिखो तुम थीटा टू पे गिवन थीटा वन एंड थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन। फिर एमएलआर बताओ, इस पे जो जिस जिस भी स्टैटिस्टिक्स में एमएलआर मिलेगा, अगर ये इंक्रीजिंग एमएलआर है, ये इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली लाइक्लीहुड रेशियो वाली फैमिली है, तो इस पे अल्टरनेटिव के बेसिस में हम लोग क्रिटिकल रीजन अपना डिफाइन कर देंगे, वही यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट होगा। एंड यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट इज ऑलवेज अनबायस्ड, ये थ्योरम होती है। थ्योरम पहले यहाँ सामने, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट जो होता है, जो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट होता है, दिस इज अनबायस्ड। अगर जिसका प्रूफ देखना है तो बीके गुप्ता की बुक देखना, बीके गुप्ता एससी गुप्ता बीके कपूर की, उस पे मिल जाएगा ऑलवेज अनबायस्ड। ओके, अगर अनबायस्ड कोई टेस्ट होता है तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग बताओ। अनबायस्ड टेस्ट का मतलब क्या होता है, उसका जो पावर है वो साइज से, अनबायस्ड टेस्ट का मतलब क्या होता है, पावर इज ग्रेटर और इक्वल टू साइज, यही होता है ना अनबायस्ड टेस्ट का मतलब। तो तुम्हारा ये पावर, ये पावर फंक्शन इंक्रीजिंग मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम 59 पे। ठीक है, 59 पे जो 59 क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, बोला इफ x1 कामा x2, इफ x1 एंड x2, x1 और x2 ये दोनों फॉलो कर रहे हैं यूनिफॉर्म 0 कामा 1 को, एंड x2 भी फॉलो कर रहा है तुम्हारे यूनिफॉर्म 0 कामा 1 को, एंड दिस बोथ आर इंडिपेंडेंट। ओके, ये इंडिपेंडेंट गिवन है। ठीक है, तो बोला कि x1 प्लस x2 तुम्हारा यूनिफॉर्म 0 कामा 2 को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उसने बोला तो ये होता है। अच्छा, अगर अगर इसको फॉलो कर रहे हैं तो एमजीएफ ऑफ जो x1 प्लस x2 आएगा, अगर ये है तो x1 और x2 इंडिपेंडेंट है, तो एमजीएफ ऑफ x1, सॉरी, mgf of x1 plus x2, this is equal to mgf of x1t due to independent, okay, x1 into x2t। okay, ये इक्वल होगा। तो अब x1 प्लस एक्स टू अगर यूनिफॉर्म को फॉलो कर रहा है इसको, तो इसका एमजीएफ क्या होगा, यूनिफॉर्म 0 कामा ए का एमजीएफ क्या होता है, यूनिफॉर्म 0 का ए कामा बी का एमजीएफ क्या होता है बताओ। इसका जो एमजीएफ होता है, सपोज ये जेड है, कोई इसको फॉलो कर रहा है, तो एमजीएफ ऑफ जेड क्या होता है बताओ भाई। ये होता है 1/b-a ई के पावर टीबी माइनस टी ए, यही होता है ना। तो यूनिफॉर्म 0 का 1 का एमजेब क्या हो जाएगा, ई के पावर 2t माइनस 1/2 दिस, एंड x1 और ये दोनों एक ही डिस्ट्रीब्यूशन से, तो x1 वालों का एमजीएफ क्या हो जाएगा, एमजीएफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ई टू पावर t माइनस 1 डिवाइड बाई 1, एंड एमजीएफ ऑफ x2 इज नथिंग बट सिमिलर ई के पावर टी माइनस 1। ओके, एंड वो बोला है एमजीएफ ऑफ x1 प्लस x2, वो बोला यूनिफॉर्म 0 कामा 2 को फॉलो कर रहे हैं, तो एमजीएफ ऑफ x1 प्लस x2 क्या है, हो जाएगा, अगर यूनिफॉर्म 0 कामा 2 को फॉलो कर रहे हैं तो ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो एमजीएफ ऑफ x1 प्लस x2
अगर इंडिपेंडेंट है और इसी को फॉलो कर रहे हैं देखो, तो ये इसके इक्वल होगा। अब एम जी एफ ऑफ एक्स वन क्या है, ये ई के पावर टी माइनस वन है, एंड दिस इज ई के पावर टी माइनस वन है, और ये ई के पावर टू टी माइनस वन बाई टू। तो दिस बोथ आर इक्वल, मीन्स एम जी एफ ऑफ ये एम जी एफ और ये एम जी एफ इक्वल है। बोलो बताओ भाई, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं आएगा, कभी आएगा ये चीज, ई के पावर टू टी माइनस टू अपॉन टू, ये क्या आएगा, ई के पावर टू टी, पहला टर्म तो आ जाएगा, फिर माइनस तो ये माइनस ई के पावर टू टी। ओके, ये होगा या नहीं, प्लस वन आएगा, यहाँ प्लस वन आ जाएगा, और डिवाइड में टू आएगा नहीं। और ये सॉरी, यहाँ पर ई के पावर टू टी ना होगा, यहाँ ई के पावर टी होगा, ठीक है। अब दिस, ये और ये इक्वल है नहीं है, तो इसका मतलब कि एक्स वन प्लस एक्स टू तुम्हारा इसको नहीं फॉलो करेगा, यूनिफॉर्म जीरो कमा टू को नहीं फॉलो करेगा। ये अगर एक्स वन तुम्हारा यूनिफॉर्म जीरो कामा वन से है और एक्स टू तुम्हारा यूनिफॉर्म जीरो कामा वन से है, देन तुम्हारा एक्स वन प्लस एक्स टू है, ये तुम्हारा कभी ना यूनिफॉर्म जीरो कामा वन को फॉलो करता, यूनिफॉर्म जीरो कामा टू को, ये फॉलो करता है ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, ठीक है। और सेकंड उसने बोला है, अब सेकंड पे आ जाओ, सेकंड बोला है कि x follows यूनिफॉर्म जीरो कामा वन और जीरो कामा एन, देन x बाई एन follows यूनिफॉर्म जीरो कामा वन बाई जीरो कामा एन। ओके, तो ये फॉलो करेगा ही। तुम एफ ऑफ एक्स लिखो, एफ ऑफ एक्स इसको मान लो y है, ये एफ ऑफ एक्स क्या होगा, वन अपॉन एन, जीरो से एक्स से एन, यही होगा। देखो, अब y इक्वल टू क्या है, x बाई एन, तो कभी भी g ऑफ x निकालना हो, कभी g y इक्वल टू कुछ फंक्शन हो g ऑफ x का, तो मैंने बताया था क्या करते हैं, मैंने बताया था कि अपने x वाले को y के टर्म में लिख दो, x को f ऑफ f इनवर्स x, एक तरह से ये इंटू डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई कर दो, इसका डिटर्मिनेंट ले लो या फिर मॉड ले लो, एक तरह। तो एफ इनवर्स वन बाई एक्स, कोई मतलब नहीं, बिकॉज यहाँ एक्स का कोई फंक्शन ही नहीं है, तो ये वन बाई एन ही हो जाएगा। और डी एक्स बाई डी एन क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, डी वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एन डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन, तो एन एन कैंसिल, तो ये वन आ जाएगा, यानी कि एफ ऑफ वाई क्या आ गया, वन। और रेंज देख लो, रेंज क्या होगी, जब तुम x की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो y की वैल्यू जीरो आ जाएगी, जब तुम x की वैल्यू n पुट करोगे तो ये n आ जाएगा, तो ये जीरो से वन तुम्हारा हो जाएगा। तो एफ ऑफ वाई क्या फॉलो कर गया, सॉरी यहाँ वन था, ठीक है। तो ये किसका पीडीएफ है, वन कामा जीरो कामा वाई कामा वन, एफ ऑफ वाई अगर ऐसा लिखा है जैसे इक्वल टू वन, जीरो टू वाई टू वन, ये किसका पीडीएफ है, ये भाई यूनिफॉर्म जीरो कामा वन का ही तो पीडीएफ है, तो तुम्हारा सेकेंड ट्रू हो गया, सेकेंड ट्रू हो गया, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे, थर्ड बोला कि एक्स वन एंड एक्स टू आर स्टैंडर्ड नॉर्मल, देन दिस इज आल्सो स्टैंडर्ड नॉर्मल। एक्स वन और एक्स टू तुम्हारा दो है, दो ये दोनों फॉलो कर रहे हैं नॉर्मल जीरो कामा वन को, बट एक थिंग यहाँ पर दी है, ये इंडिपेंडेंट नहीं दिया है, ठीक है, दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट। ओके, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू उसने बोला है कि ये फॉलो कर जाएगा तुम्हारा, दिस इज फॉलोज नॉर्मल जीरो कामा वन। ओके, तो मुझे ये बताओ कि एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन रूट टू अगर फाइंड करना है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल जीरो कामा वन को फॉलो करेगा, ये बताओ। अच्छा ये बताओ, इसका मीन और वेरिएंस क्या होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू का मीन एंड वेरिएंस क्या होगा, इसका मीन क्या होगा, इसका मीन तो जीरो आएगा, इसका मीन तो जीरो ही आएगा।
इसका मीन 0, लेकिन वेरिएंस क्या होगा इसका ये बताओ। ये 1/2 वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस कोवेरिएंस ऑफ कोवेरिएंस ऑफ x1 कामा x2। ओके, तो वेरिएंस ऑफ x1 1 हो गया, x2 भी 1 हो गया, प्लस अब कोवेरिएंस तो उसने बताया नहीं ना, ये भी नहीं लिखा है कि इंडिपेंडेंट है, तो ना तो इंडिपेंडेंट लिखा है, कोवेरिएंस भी नहीं बताया, तो ये जो आएगा ये फाइनली तुम्हारा 1 प्लस कोवेरिएंस ऑफ x1 कामा x2 आ जाएगा। अगर इंडिपेंडेंट लिखा होता तो स्टैंडर्ड नॉर्मल को फॉलो करते, इंडिपेंडेंट नहीं लिखा तो स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं जाएगा। क्वेश्चन ये थोड़ा सा घुमाया है, ठीक है। इसमें इंडिपेंडेंट लिख देगा अगर तो स्टैंडर्ड नॉर्मल चला जाएगा, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं लिखा तो स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं जाएगा, ठीक है। तो थर्ड तुम्हारा फॉल्स हो गया, सेकंड अभी तक ट्रू हुआ है। अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ क्या कह रहा है? फोर्थ कह रहा है कि अगर x तुम्हारा एक्सपोनेंशियल 1 है, एक्सपोनेंशियल 1 है, देन तुम्हारा e के पावर माइनस एक्स जो फॉलो करेगा वो फॉलो करेगा यूनिफॉर्म 0,1 को। तो ये तो रिजल्ट होता है ना, इसको सॉल्व अगर करना है तो वही मानो ये y है तुम्हारा। तो मैंने क्या बताया कि अगर हमें f ऑफ y निकालना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं f इनवर्स ऑफ x, मतलब इंटू डी एक्स बाई डी वाई। एफ ऑफ एक्स है क्या? एफ ऑफ एक्स है तुम्हारा e के पावर माइनस का x एंड x ग्रेटर इज 0, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहाँ से x, यहाँ से y, अब यहाँ x की जो वैल्यू है वो y के टर्म में लिखो, ठीक है। y के टर्म में लिखोगे तो ये तो y ही हो गया, डायरेक्ट y। ओके, एंड dx बाई डी वाई क्या होगा? dx बाई डी वाई यहाँ से क्या आएगा? dy इज इक्वल टू e के पावर माइनस एक्स माइनस इंटू डी ऑफ एक्स, मतलब दिस इज इक्वल टू डी वाई इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स। तो यहाँ से डी एक्स बाई डी वाई क्या आ गया? डी एक्स बाई डी वाई आ गया तुम्हारा माइनस का वाई 1 बाई में, ठीक है। अब मैंने बोला हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, मॉड ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट का मतलब मॉड लेते हैं, डिटर्मिनेंट सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं, मॉडुलस एक्चुअली जैकोबियन होता है वो, ठीक है। तो ये मॉडुलस लेते हैं, जैसे मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस में माइनस का 1/y इक्वल टू 1/y, तो y इंटू 1/y हो गया, तो y इंटू 1/y, y से y कैंसिल, ये 1 आ गया। अब रेंज बताओ, रेंज क्या होगी? जब x ग्रेटर 0 होगा तो एक्सपोनेंशियल क्या होगा, एंड जब इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा, तो e के पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होगा, तो 0 से बिगर। देन जब ग्रेटर 0 होगा तो दिस इज x ग्रेटर और इक्वल टू होता है ना, ग्रेटर और इक्वल टू 0 पे 1 आ गया, तो मतलब 0 से 1 के बीच में होगा। तो ये किसका पीडीएफ होता है? अभी मैंने बताया था ना कि अगर एफ ऑफ वाई इक्वल टू तुम्हारा 1 है एंड 0 से वाई से 1 है, तो ये किसका पीडीएफ होता है? ये यूनिफॉर्म ही तो है, यूनिफॉर्म 0 कम होगा, तो तुम्हारा वाई फॉलो कर गया, मतलब फोर्थ राइट हुआ। समझ ना आया हो तो बोलो, अगर समझ नहीं आया है तो बोलो। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम 60 है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ग्रेटर और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, दिस इज राइट। सेकेंड उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए यूनियन बी इज ग्रेटर और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फिर इसने थर्ड बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी। फिर से लास्ट बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी is greater or equal to probability of A plus probability of B minus 1। अच्छा, ये तो आप बूल्स इनइक्वालिटी जानते हो तुम लोग?
बोलो भाई, बुल्स इनइक्वालिटी जानते हो? देखो, जो बुल्स इनइक्वालिटी होती है वो बोलती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन आई इक्वल टू 1 to n ए आई, ये होती है बुलेज इनइक्वालिटी। दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n पी ऑफ ए आई माइनस n माइनस 1। ओके, and union of I equal to 1 to n ai, this is greater or equal to summation of I equal to 1 to n p of ai। इस इनइक्वालिटी का नाम क्या है? इस इनइक्वालिटी का नाम है बुलेज इनइक्वालिटी। ठीक है, अब मैं इसको दो के केस में तुम्हें प्रूव करके दिखाता हूँ। ठीक है, दो के केस में प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, तो पहले प्रूव करते हैं फर्स्ट वाली को दो के केस में। तो ए यूनियन बी अगर है तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, ये फार्मूला तो पढ़े होगे 12th में, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सो दिस इज क्या? अब भाई अगर ये प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी तो 1 से बाउंडेड ही होती है ना हमेशा, या तो इक्वल होगी। दिस इज बाउंडेड आर इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर तुम इसकी वैल्यू निकालना चाहो ए इंटरसेक्शन बी की, तो दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू व्हाट? दिस इज ग्रेटर टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस 1। तो ये बात तुम्हारी पक्की हो गई। ये दो के केस में हो गया, तुम्हारा प्रॉब्लम दो के केस में है, लेकिन मैंने एन के केस में लिखा, तो इसमें ये ऑप्शन तो ट्रू हो गया, डी ऑप्शन तुम्हारा ट्रू हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन ट्रू हुआ। अब डी ऑप्शन ट्रू हुआ, अब हम यूनियन की बात करते हैं, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होता है बताओ? तो मुझे बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है ये। अब मुझे बताओ ये क्वांटिटी क्या होगी? ये क्वांटिटी तुम्हारी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगी या नहीं? दिस क्वांटिटी। तो अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है तो ये होल क्वांटिटी तुम्हारी या तो पी ए प्लस पी बी के इक्वल होगी या तो पी ए प्लस पी बी ग्रेटर होगा। बिकॉज अगर ये जीरो है तो पी ए प्लस पी बी आ जाएगा, लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो कुछ इससे लेस आएगी पी ए प्लस पी बी से, तो दिस क्वांटिटी लेस और इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये भी प्रूफ हो गया दो के लिए। और एन के लिए मैंने, एन का भी प्रूफ अगर देखना है तो एक्चुअली में मैथमेटिकल इंडक्शन से होगा प्रूफ। ठीक है, यहाँ मैथमेटिकल मतलब के लिए ट्रू मान लेंगे या आर के लिए ट्रू मान लेंगे, एन के लिए प्रूफ कर देंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन यही कहता है ना। तो अब इसमें से कौन सा ट्रू हो गया? ये ट्रू हो गया। ठीक है, अब तुम्हारा ये फॉल्स हो गया और ये भी फॉल्स हो गया, क्योंकि इन जनरल ये ट्रू नहीं होता। उसने नेसेसरी बोला है, नेसेसरी कंडीशन उसने बोला है। नेसेसरी कंडीशन ये ट्रू तो नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होता तो ट्रू हो जाता। तो नेसेसरी कंडीशन जो है वो फर्स्ट ट्रू है और लास्ट ट्रू है तुम्हारा, फर्स्ट और डी मतलब ए और फोर ट्रू है, 1 और 4। किसी को प्रॉब्लम हो यहाँ पर तो पूछो, नहीं तो क्लास को अब एंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस सेशन मतलब इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन हो गए, मतलब ये पेपर तुम्हारा हो गया। अब मैं कल नया पेपर स्टार्ट करूंगा, तो कल से रेगुलर क्लास, अब तुम लोगों की क्लास रेगुलर होगी। ठीक है, अभी मैं थोड़ा घर चला गया था इसलिए क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब क्लास रेगुलर हो जाएगी। ठीक है, रेगुलर होगी। तो अब मैं अगले दिन से नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके सर। किसी को डाउट हो तो पूछो, नहीं तो यहीं नहीं निकलते हैं क्लास। नो सर, थैंक यू।